patient, I am checking a LPA. And LPA is the new lipoprotein, which is one of the most dangerous. Yeah. It's kind like burning the fuel is started by this. Yeah. So I have taken a talk here in Dubai also on LPA to all the cardiologists, what it is, how to manage, and what is the drugs in pipeline. Are you getting it done free, or patient has to pay for that? No, free. Free, no? Free. That is Everything what the main hurdle here. Because if that's I very nice. Or FOP, FOB 100. Huh? FOB 100. FOB 100. We have to ask for it separately, and it is not included in the regular, not included in the regular lipid profile. So we have to ask for it. Normally, I don't do FOB because one of the things we are doing LDL, we also have VLDL. So FOB is nothing but a group of remainings of the group of LDL, VLDL combination. And we do non-HDL also. So the role of FOB is really very low. Because FOB is, what FOB is? FOB is the all compound or lipoprotein which has got the beta 100. Yeah. Which is all this group of combination of these groups. But lipoprotein is a separate entity. There is a news for you, wherein that myself and Dr. Abhijit both have been given the honorary membership of Lipid Association of India. Congratulations, that's good. And we did the advanced lipid certification course from Lipid Association of India. Wow, very good. So in September, they will have the World Congress of Lipidology in Delhi. And in that conclave, I and Abhijit will be given that certification. Very good. ALCC, Advanced Lipid Certification course. That's very good. Congratulations. On this lipidology. Yeah. हम भी आ जाते सितंबर में, Singh ji, good morning. सितंबर में I will be in London, तो होंगे नहीं यार. Dr. Kirti has joined. She is an ophthalmologist and very keen in public education. Very keen in public education. In the last meeting, we had a presentation with her on proper timely investigation of retina and eye in diabetic patients. So today she has joined. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Please call me by my name, sir. Good morning. आप मेरे पिता तुल्य हैं, please, sir. And Dr. Viren has joined from from Dubai. He is my batchmate. Good morning, sir. He is a cardiologist. Good morning. Good morning. So Abhijit, so it's 9:05. Yeah. And I think without wasting more time, we can start with today's topic. And people will join. People will keep joining. So good morning and welcome to everybody. And today with us, we have Dr. Alok Kumar Gupta. We have Dr. Viren Mishra sir and Dr. Kriti ma'am also, who has joined us, and various other participants. The topic for today's meeting is the metabolic memory or the metabolic legacy, the legacy of health. The legacy of health means, I would try to take this in English and Hindi both, because this is for the general public as well. So बात ऐसी है कि आप जब किसी चीज को, किसी वस्तु को सही प्रकार से उसका मेंटेनेंस करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो वो चीज लंबे समय तक आपका साथ निभाती है. ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर है, जिसमें ऐसा माना गया है कि शरीर इज द हार्डवेयर एंड आत्मा इज द सॉफ्टवेयर. तो शरीर में आत्मा का वास होता है, और ये आत्मा सही प्रकार से कार्य करवा सके हमसे, उसके लिए जरूरी है कि जो हमारा हार्डवेयर है शरीर, उसको भी हम सही प्रकार से उसकी देखभाल करें. और जिस प्रकार से आप कोई गाड़ी लेते हैं, या सपोज आपके पास एक खेत है और एक जनरेशन ने उस खेत को जोता और नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ा, यू हैव मेड द लैंड अनफर्टाइल.
तो अब आने वाली जनरेशन फिर उसका फायदा नहीं उठा पाएगी। या आपने कोई गाड़ी खरीदी है और आप उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, आप ये सोचते हैं कि जब ये कुछ साल और चला लें, कुछ साल और चला लें, फिर इसकी सर्विसिंग होगी, तो कुछ साल बाद फिर वो गाड़ी स्क्रैप हो जाएगी। आपको अपनी चीजों का ध्यान शुरू से रखना है, क्योंकि आप जिस प्रकार से चीजों को मेंटेन करेंगे उसी प्रकार वो चीजें लंबे समय तक आपका साथ देंगी। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर है, ह्यूमन बॉडी, जिसको कि हम शुरू से इसको मेंटेन करते हैं और ये करते भी हैं। बिकॉज आप जैसे ही अपने टीनेज में जाते हैं, देन यू स्टार्ट यूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, cream, this, that, face wash to maintain your outer external appearance. लेकिन शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसको नजरअंदाज कर देने से हमारे शरीर का जो काम करने की क्षमता है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और विभिन्न प्रकार के रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप किसी रोग से पीड़ित हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो यदि आप शुरू से उस चीज की रोकथाम सही प्रकार से करें तो लंबे समय तक बिना जटिलताओं के, बिना कॉम्प्लिकेशंस के आप अपना समय निकाल सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट फ्रॉम गोरखपुर, इनको मैं वेलकम करता हूं और आग्रह करता हूं कि हमारे को इस पे प्रकाश डालें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिजीत। प्रदीप तिवारी जी हमारे सचिव भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मैं कहूंगा आप अपने आप को अनम्यूट करें। हमारे अध्यक्ष इस समय अमेरिका प्रवास पे हैं अपने बेटे के पास, तो वो नहीं जुड़ पाएंगे। प्रदीप जी आप कृपया अनम्यूट कर लें। कुछ समस्या? अच्छा हो गया आप अनम्यूट। हाँ हाँ हो गया। हाँ, नहीं अब आप बोले कुछ, आप सचिव हैं, पहले आप मीटिंग की शुरुआत कराइए। हम लोग तो देर हो रहा था तो शुरू कर चुके थे। नहीं ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया मैं। तो आज का विषय सेहत की विरासत ली हम लोगों ने, इसी पे करने जा रहे हैं। सभी को सुबह का नमस्कार। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेहत की विरासत। सेहत की विरासत का मतलब यह है कि सब कुछ जैसे विरासत में मिलता है उसी तरह से सेहत भी विरासत में ही मिलती है। और सेहत को जिस तरह से विरासत को संभाल के रखा जाता है उस तरह से सेहत को भी संभाल के रखना बहुत ही जरूरी है। इसी विषय पर आज हमारे डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता आपको काफी कुछ बताएंगे, आप लोग ग्रहण करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, और मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ ओके, तो अब ये फुल स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी फुल स्क्रीन दिख रहा है। जी, तो ये विषय है हमारा आज का, सेहत की विरासत या सेहत का धरोहर या लीगेसी ऑफ हेल्थ। क्यों मैंने इस विषय को चुना? इसलिए कि हम इलाज के बारे में, दवाओं के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में तो बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन एक, जैसा कि डॉक्टर अभिजीत ने भी बताया कि एक शरीर हमारा एक हार्डवेयर है, तो हर हार्डवेयर की मेंटेनेंस की एक जरूरत होती है। और सही वक्त से, सही समय से अगर आप उसका मेंटेनेंस करते रहें तो लंबे समय तक वो हार्डवेयर आपका साथ निभाता है, चाहे वो आपका स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, कोई भी चीज हो। और यदि आप उस पर लापरवाही करते हैं और एक बार वो डैमेज हो जाता है, इररिपेरेबल टाइप की डैमेज हो जाती है, और बाद में आप सोचे कि अब मैं इसमें सब कुछ डाल दूंगा, पैसा लगा दूंगा तो एकदम पहले जैसी हो जाएगी, तो वैसा होता नहीं। तो वही हाल शरीर का भी। अब ये विरासत जो है, सेहत की विरासत, ये लीगेसी जो हमें मिलती है वो दो तरीके से मिलती है। एक तो अनुवांशिक होती है, यानी जेनेटिक्स। हमारे माँ बाप ने
जो गुणसूत्र, जो जीन्स हमको दिए और उनको लेके हम पैदा हुए, तो वो तो हमें अपने माँ बाप से विरासत में मिला है, वो अनुवांशिक है। और दूसरा होता है कि हम अर्जित करते हैं। फिर जब हम इस धरती पे आ गए, उस अनुवांशिक गुणसूत्र को लेकर के, उस धरोहर को लेकर के, तो फिर हम अपने आने वाले काल के लिए 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद हमारा शरीर कैसा रहेगा, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं उसको हमें अर्जित करना पड़ता है। वी हैव टू अर्न इट। तो वो अर्जित होता है ना। इट इज टाइम टू मेक माई ओन लिगेसी। एक तो लिगेसी आपको आपके पूर्वजों ने दे दिया गुणसूत्र के माध्यम से, जीन्स के माध्यम से, लेकिन अब आपको अपनी लिगेसी खुद भी अर्न करनी है, बनानी है, अर्जित करनी है। तो अब जो अनुवांशिक लिगेसी हमें मिलती है, हमें क्या मिलता है माँ बाप से? लिंग मिलता है कि हम पुरुष हैं कि स्त्री हैं। हमें कदकाठी मिलती है, जैसी कदकाठी माँ बाप की होती है लगभग वैसी कदकाठी हमारी भी, जो बच्चा पैदा हुआ उसकी भी आगे चल के होगी। उसके बालों का रंग वैसा होगा, आंखों का रंग वैसा होगा, नाक नक्शे वैसे होंगे, चलने ढलने का तरीका कुछ लगभग कुछ वैसा होगा। तो ये सब चीजें हमको विरासत। आप भी कहते हैं ना कि साहब ये फलाना बच्चा तो लगता है जैसे उनका लड़का है या उनकी लड़की है, ये बच्चा माँ पे गया, ये बच्चा बाप पे गया है। तो ये इन्हीं गुणसूत्र के वजह से होता है। इसके साथ ही हमें कुछ अनुवांशिक रोग भी, जेनेटिक डिजीज भी ट्रांसफर होते हैं, वो भी हमें अपने माँ बाप से मिल जाते हैं और उस पे हमारा कोई। तो ये जितने चीजें मैंने आपको बताई, ये जो है नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ना हम अपना लिंग बदल सकते हैं, ना हम अपना गुणसूत्र बदल सकते हैं, ना हमको गुणसूत्र के माध्यम से जो कुछ हमें कमजोरियां मिली है माँ बाप की तरफ से, कुछ बीमारियां मिल गई हैं, हम उनको भी नहीं बदल सकते। वो इनको बदलना हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन जो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो आगे चल करके किसी रोग के प्रकटीकरण का कारण बन सकते हैं, उनको प्रकट होने से हम काफी हद तक कई बार रोक भी सकते हैं। क्योंकि एक टर्म होता है एपिजेनेटिक्स, हिंदी जिसका अनुजात है। एपी मीन्स ऊपर, जीन्स के ऊपर। जैसे एक गेहूं का बीज है, उसको जेनेटिक माध्यम से, अनुवांशिक माध्यम से ये गुणसूत्र मिला हुआ है कि जब उसको आप जमीन में डालेंगे तो उससे गेहूं का पौधा बनेगा और उसमें से फिर गेहूं के बालियां लगेंगी, गेहूं पैदा होगा। लेकिन उस गेहूं के बीज को यदि आप जमीन में डाले ही नहीं, उसे बोए नहीं, उसे खाद पानी न दें, तो वर्षों उसी तरह से पड़ा रह जाएगा। वो गेहूं के पौधे में और गेहूं बनाने में, गेहूं की बाली बनाने में सक्षम नहीं होगा। तो ये जो हम उसको जमीन दे रहे हैं, खाद पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, ये एपिजेनेटिक्स है। तो उसी तरह से तो जीन अभिव्यक्ति पर गैर अनुवांशिक प्रभावों से संबंधित या व्युत्पन्न जो चीजें हैं उसको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। तो मान लीजिए हमें एक जीन्स मिला मोटापे का, जीन्स मिला हमें आगे चल करके मधुमेह हो जाने का, जीन्स मिला हमें आगे चल करके ब्लड प्रेशर हो जाने का, जीन्स मिला हमें आगे चल करके कम आयु में ही हार्ट अटैक हो जाने का, पक्षाघात हो जाने का, लकवा मार देने का। तो जब तक इस जीन्स को हम उचित वातावरण एपिजेनेटिक्स के माध्यम से नहीं देंगे, तब तक ये जीन्स अपने आप को प्रभावी रूप से प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो ये एपिजेनेटिक्स हमारे हाथ में, जीन्स तो हमारे हाथ में नहीं है, वो अनमॉडिफाइबल है। लेकिन ये जो एपिजेनेटिक वातावरण है, ये पूर्णतः हमारे हाथ। और ये वातावरण क्या होते हैं? हम कब जगते हैं, कब सोते हैं, कितनी अच्छी नींद लेते हैं, संतुलित भोजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, भोजन संतुलित है भी तो हम कब लेते हैं, उसका टाइमिंग क्या है ना। हम नियमित व्यायाम करते हैं कि नहीं, हम कोई सिगरेट, शराब, तंबाकू ऐसे दुर्व्यसन के शिकार तो नहीं है। ये सारी चीजें एपिजेनेटिक्स हैं और ये पूर्णतः हमारे हाथ में। तो यदि हम तो अगर हमको किसी व्यक्ति को पता है कि उसके परिवार में मधुमेह का इतिहास है, उसके परिवार में कम आयु में हार्ट अटैक होने का इतिहास है, उसके परिवार में ज्यादातर लोग ब्लड प्रेशर से पीड़ित रहते हैं, तो वो व्यक्ति अगर अपने दिनचर्या को, लाइफ स्टाइल को प्रारंभ से ही मेंटेन करके रखे और इन एपिजेनेटिक फैक्टर्स के माध्यम से उन जीन्स को प्रकटीकरण करने में सहायक
स्थिति ना पैदा करे तो बहुत लंबे समय तक वो जीन्स डॉर्मेंट पड़े रहेंगे, शांत पड़े रहेंगे और एक लंबा समय बिना उस बीमारी के प्रकटीकरण के आदमी निकाल सकता है। तो एक तो ये हो गया जीन्स संबंधी और एपिजेनेटिक संबंधी बातचीत कि हम कैसे इस जो हमको बीमारी की लीगेसी मिली है जीन्स के माध्यम से, उसको हम कैसे अप्रभावकारी या निष्प्रभावी कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि मधुमेह में इसकी क्या भूमिका है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ऐसा करेंगे तो होगा, लेकिन क्या इसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस है, कोई साक्ष्य है? क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में हम कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। हम साक्ष्यों पे बात करते हैं, हम हवा हवाई बात नहीं करते, हम पहले साक्ष्य जुटाते हैं, शोध करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करते हैं, जानवरों पे भी करते हैं, उसके बाद मनुष्यों पे भी करते हैं, और जब हमें उस साक्ष्यों के माध्यम से कोई ठोस निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा करने से हमें ये लक्ष्य प्राप्त होगा, तो फिर उसके लिए हम क्लिनिकल रिकमेंडेशंस देते हैं। जो विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जो हमारी संगठन है वो रिकमेंडेशंस देती है कि आपको अपने जीवन में ये करना चाहिए, इलाज में ये करना चाहिए, तो आपको एक अच्छा नतीजा प्राप्त होगा। तो कुछ साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक शोध जो है हम उसकी बात करते हैं मधुमेह और एपिजेनेटिक्स को लेकर के। तो अब जैसे एक कंडीशन आप सब जानते हैं कि एक होता है डायबिटीज, मतलब पूर्ण रूपेण मधुमेह, वो हम ब्लड शुगर के लेवल के अनुसार घोषित करते हैं कि इस व्यक्ति को मधुमेह हो गया है, इस व्यक्ति को मधुमेह नहीं है, और ये व्यक्ति बीच वाले खांचे में है, न तो इसका रिपोर्ट पूर्णतया नॉर्मल है और न ही पूर्णतया मधुमेह के दायरे में आता है, ये एक ग्रे जोन में है। इसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं, प्री मधुमेही, मधुमेह का पूर्व रूप। यानी ऐसे समझ लें कि आपको एक मधुमेह की ट्रेन है, उसमें आरएसी का बर्थ मिला हुआ है, अभी कंफर्म बर्थ नहीं मिला है, लेकिन आप प्लेटफॉर्म पे भी नहीं, आपको ट्रेन में चढ़ा दिया गया है। अब आगे चल करके आपका बर्थ कंफर्म होता है, आप कंफर्म मधुमेही हो जाते हैं कि नहीं, या आपको ट्रेन से उतार दिया जाता है, यह आपके अपने दिनचर्या पर और कितनी एपिजेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर आप होशियारी पूर्वक कार्य करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं उस पर निर्भर करेगा। तो कुछ स्टडीज मैं आपको दिखाता हूँ प्री डायबिटिक्स के ऊपर, है ना। और क्यों हम प्री डायबिटिक्स की बात कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो प्री डायबिटिक होते हैं उनको आगे चल करके डायबिटिक बन जाने की संभावना बहुत प्रबल होती है। लगभग 5 से 10% प्री डायबिटिक या प्री मधुमेही हर साल डायबिटीज के खांचे में चले जाते हैं, उनकी सीट कंफर्म हो जाती है। और एक बार डायबिटीज हो गई तो फिर उसके बाद उसका इलाज अलग हो जाता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस अलग हो जाते हैं। हालांकि प्री डायबिटीज में भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसलिए हम प्री डायबिटिक्स की बात कर रहे हैं। और ये आपने देखिए कि ये एक बहुत बड़ा एक मतलब जितनी भी 129 जो स्टडीज हुई थी उनके आंकड़ों को इकट्ठा करके उन पे अध्ययन करके, जिसमें कि लगभग 1 करोड़ लोगों के ऊपर ये आंकड़ा था। 1 करोड़ सब्जेक्ट्स, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है या साक्ष्य नहीं है। 1 करोड़ लोगों के डेटा को एनालाइज करके ये निकाला गया कि यदि प्री डायबिटीज है तो प्री डायबिटिक्स में किसी भी कारण से मृत्यु होने की संभावना 13% बढ़ जाती है। हृदय संबंधी कारणों से जो मृत्यु की संभावना है वो 15% बढ़ जाती है। सेरेब्रोवास्कुलर हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, इसकी संभावना 16% बढ़ जाती है। और स्ट्रोक, पक्षाघात होने की संभावना 14% बढ़ जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक है तो उसके इन सब चीजों के आसार एक उस व्यक्ति के जो कि नॉन डायबिटिक है करीब करीब 15 से 16% अधिक हो जाता है। इसलिए प्री डायबिटिक्स के ऊपर ही कार्य करना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उनको डायबिटिक के नॉन डायबिटिक के रेंज में ले आए जीवन शैली परिवर्तन के माध्यम से। और ये रेटिनोपैथी मतलब आंख के पर्दे में जो विकार आ जाता है मधुमेह की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, या इन दोनों के संगम की वजह से, इसको हम कहते हैं रेटिनोपैथी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो देखा गया कि जो प्री डायबिटिक होते हैं, अभी पूर्ण रूप में डायबिटिक घोषित नहीं है, लेकिन उनमें भी रेटिनोपैथी, रेटिना का विकार 8 से 12% प्री डायबिटिक्स में देखने को मिला। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको तो ये गुमान है कि हमें तो डायबिटीज है ही नहीं, हम तो अभी प्री डायबिटिक हैं, तो हमें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने अपना आंख भी नहीं चेक कराया, हमने अपना ब्लड प्रेशर भी नहीं चेक कराया,
और पता लगा कि हम उन 8 से 12% लोगों में हैं जिनमें की आंख के पर्दे में विकार शुरू हो चुका है। एक ये स्टडी हुई डीपीपी स्टडी, डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम, ये प्री डायबिटिक्स लोगों में किया गया और ये बात देखा गया कि जो रेटिनोपैथी था वो करीब करीब 8% लोगों में जिनमें इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस था रेटिनोपैथी देखने को मिला। और जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या वही प्री डायबिटीज का एक स्टेज होता है और डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये फुनागाटा स्टडी हुई है, उसमें देखा गया कि कोरिलेशन बिटवीन आईएफजी मतलब खाली पेट का शुगर अगर आपका नॉर्मल से बढ़ा हुआ है तो डायबिटिक वाज नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर ग्लूकोज पीने के बाद आपका शुगर भाग रहा है नॉर्मल रेंज से ऊपर तो आपको रेटिनोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुटनबर्ग की स्टडी में ये प्रेवलेंस 8% देखा गया। तो अब इसलिए ये देखा गया कि अगर हम प्री डायबिटिक्स के ऊपर कुछ स्टडी कंडक्ट करें और उनको डायबिटिक होने से बचाएं तो उसका क्या हमको आगे चल करके नतीजा मिलता है, क्या लाभ मिलता है। तो मधुमेह के प्रारंभ से ही अच्छे मधुमेह नियंत्रण का भावी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ शोध मैं आपसे शेयर करता हूं। ये सारे शोध जो है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के हैं, माने औषधि के शोध नहीं है, मोस्टली आपके जीवन शैली परिवर्तन के माध्यम से शोध किए गए हैं। अक्सर लोग कहते हैं साहब ये एलोपैथ के डॉक्टर तो सिर्फ दवा की ही बात करते हैं, तो दवाई खिलाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं है। आम जनता जो है वो खुद ही दवा खाने में इंटरेस्टेड होती है। वो सोचती है कि हम अपना जीवन शैली जैसे जी रहे हैं हमको वैसे ही जीने का अवसर प्राप्त होता रहे, बस हमें कोई एक गोली मिल जाए कि हम किसी बीमारी से बचे रहें। वो अपने जीवन में परिवर्तन लाने को तैयार नहीं होते और सारा दोष चिकित्सकों पे मढ़ देते हैं। तो ये जो मैं 3 स्टडी आपके सामने संक्षेप में रख रहा हूं। ये एक डीपीपी स्टडी हुई थी अमेरिका में, डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम, और फिर जब ये स्टडी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद इसमें जो लोग शामिल किए गए थे उनको ऑब्जर्वेशन में लंबे समय तक रखा गया, 10 साल तक और फिर 15 साल तक। आप सोचिए कितने कितने लंबे समय तक शोध कार्य चलते हैं। इनिशियल स्टडी 3 साल की थी, 3 साल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कराया गया, नतीजे देखे गए, फिर उनको 10 साल तक और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया और उसके बाद 15 साल तक रखा गया। दूसरी स्टडी है दाचिंग स्टडी, है चाइना में की गई। प्रारंभिक स्टडी जो थी वो 6 साल की थी और फिर इनको 23 साल तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। बहुत दुष्कर कार्य है 23 साल तक किसी को पीछे लगे रहना कि तुम्हारी क्या स्थिति चल रही है। और ये फिनलैंड की स्टडी है, फिनिश डायबिटीज प्रिवेंशन स्टडी, जो 4 साल की थी और उसके बाद 7 साल के बाद फिर इसके नतीजे देखे गए। तीनों स्टडी का लबोलुआब आपको नतीजा क्या निकला आप देखेंगे कि जो डीपीपी और डीपीपीओएस, डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम और ऑनगोइंग स्टडी, प्रारंभिक जो 3 साल की स्टडी थी उसमें जिनको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से वजन कम किया गया, एक्सरसाइज कराया गया, उनमें प्री डायबिटीज से डायबिटीज में परिवर्तन की दर में 58% की गिरावट आ गई, सिर्फ जीवन शैली बदलने से। दाचिंग में भी 51% की गिरावट आई और फिनलैंड की स्टडी में भी 58% की, यानी मोटा मोटा 50 से 60% की गिरावट प्री डायबिटीज से डायबिटीज में परिवर्तन में आ गई, सिर्फ आपने अगर जीवन शैली में परिवर्तन करा दिया, वजन कम करा दिया। और 10 साल के बाद डीपीपी स्टडी में 10 साल के बाद देखा गया कि 34% ये प्रभाव बना रहा। मैंने 10 साल के बाद भी जो प्री डायबिटिक थे उनका डायबिटीज में जो परिवर्तन की दर थी उसमें 34% की गिरावट बनी रही। यानी हमने अगर प्रारंभिक अवस्था में ही अगर कोई प्रयास किया तो उसका असर हमें 10 साल बाद भी देखने को मिल रहा है। यही सेहत की विरासत है। अच्छे कार्य यदि समय से प्रारंभ से ही किए जाएं तो उसकी विरासत, उसके डिविडेंड्स, उसके नतीजे, अच्छे नतीजे हम बहुत आने वाले सालों तक भोगते हैं। और 15 साल के बाद भी यह प्रभाव 27% बना रहा। दाचिंग स्टडी में 51% था जब स्टडी समाप्त हुई और 23 साल के बाद यह प्रभाव 43% तक फिर भी बना रहा। यानी शुरू के 3 साल आपने मेहनत की, वजन कम किया, एक्सरसाइज कराया, सब कुछ किया, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। उनके ऊपर सिर्फ निगरानी रखी गई कि अब ये आगे चल के कैसा इनका नतीजा निकलता, और देखा गया कि 23 साल बाद भी प्री डायबिटीज से डायबिटीज में परिवर्तन की दर में 43% की गिरावट है। तो ये क्या है? यही सेहत की विरासत है, लिगेसी ऑफ हेल्थ है। और सेम चीज आपको एफडीपीएस में भी 58%, 7 साल पे 43%।
एक ये स्टडी जो है, अब हम आ जाते हैं कि किसी को डायबिटीज हो गई और होने के बाद हमने उसको कैसे टैकल किया और कैसे मैनेज किया और उसकी विरासत क्या मिली हमें। तो ये एक स्टडी बहुत फेमस स्टडी है, यूके प्रोस्पेक्टिव डायबिटीज स्टडी, ये यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। ये टाइप 2 मधुमेही लोगों में किया गया था। इसको हम यूके पीडीएस कहते हैं शॉर्ट में, यूके पीडीएस। ये 20 सेंटर्स पे, 20 केंद्रों पर जो टाइप 2 के नए नए जिनको टाइप 2 मधुमेह हुआ था, उन पेशेंट्स को, उन लोगों को, उन मधुमेहियों को 1977 से 1997 के बीच में एनरोल किया गया और उनको 2 ग्रुप में बांटा गया। एक जिनमें की जो आम कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट चलता था वो दिया गया, और एक में डाला गया कि इनको हम इनका शुगर बहुत टाइट कंट्रोल करेंगे, प्रारंभ से ही इनका HbA1c हम 7 के आसपास ला के रखेंगे। और फिर ये स्टडी पब्लिश हुई। एवरेज जो स्टडी की ड्यूरेशन थी वो लगभग 7 साल की थी। स्टडी तो चली 77 से 97 तक, 97 में स्टडी पब्लिश हुई। एक औसत एक व्यक्ति जो इसमें एनरोल हुआ लगभग 7 साल तक उसके ऊपर ये कार्य किया गया। और फास्टिंग ब्लड शुगर जो जिनको एनरोल किया गया स्टडी में, उनका 110 से 270 के बीच में फास्टिंग ब्लड शुगर था। और एम ये रखा गया कि इनका ब्लड शुगर हम 7 पर ले आएंगे। और एक वो थे जिनमें हम आम जो खाली डाइट और ये सब चीजें इसके माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश की गई। एक में हमने इंसुलिन तक दिया, नहीं हमें शुगर नीचे लाना और 7 से ऊपर HbA1c नहीं जाने देना। तो कंट्रोल वर्सेस इंटेंसिव, इसमें हमको अंतर क्या देखने को मिला आने वाले समय में, ये देखिए। ये देखने को मिला यदि हम 1% भी HbA1c में कमी कर देते हैं इंटेंसिव मैनेजमेंट से, तो हमें डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन उसमें 21% की गिरावट आ जाती है। हार्ट अटैक में 14%, जो माइक्रोवेस्कुलर मतलब रेटिनोपैथी, आंखों का विकार, नेफ्रोपैथी, गुर्दे का विकार, इनमें 37%। और अक्सर पैरों में आप देखते हैं गैंग्रीन हो जाता है, अंग विच्छेदन, पांव विच्छेदन करना पड़ता है, उसमें 43% की गिरावट दर्ज की गई टाइट कंट्रोल करने से। और ये देखा गया कि प्रारंभिक अवस्था में जो हार्ट अटैक था उसमें बहुत अधिक हमें प्रभाव देखने को नहीं मिला। पिछले साइड में आप देखिए वो मात्र 14% था, जबकि माइक्रोवेस्कुलर में गुर्दे और आंख में 37%, पांव में 43%, लेकिन हार्ट में मात्र 14%। तो ये हुआ। लेकिन जब इनको हम लंबे समय तक 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हमने इनके ऊपर जब निगरानी रखी, तो ये देखा कि आगे चल करके जिनको हमने इंटेंसिव थेरेपी दी थी उनमें हार्ट से होने वाले मृत्यु दर में भी कमी आनी शुरू हो गई। यानी तत्काल तो हार्ट पे आपको उतना अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में हार्ट पर भी वो प्रभाव देखने को मिलने लगा। ये हुआ लीगेसी इफेक्ट, जिसको हम लोगों ने कहा ये लीगेसी है। आपने अच्छे मेटाबॉलिक कर्म किए, अच्छा कंट्रोल किया, शरीर की कोशिकाओं को एक अच्छी स्मृति दी, अच्छे कंट्रोल की, तो वो जो है वो जीन्स पर इम्प्रिंट हुआ और वो आगे चल करके परिलक्षित हुआ कि उनमें हृदयघात, हार्ट अटैक, इन सब चीजों के दर में कमी आ गई। फिर ये भी देखा गया कि प्रारंभिक अवस्था में हमको उतना अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं मिला हार्ट संबंधी समस्या में। तो ये माना गया कि ये सिर्फ ग्लूकोज की वजह से ही हार्ट अटैक नहीं होता, इसमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, खून में चर्बी के विभिन्न घटक जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, डिसलिपिडीमिया, यानी उन घटकों के मानक में, उनके स्तर में विकृति आ जाती है, कुछ बहुत बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, ये एक फैक्टर। तीसरा आपका वही ब्लड शुगर, और चौथा जो प्लेटलेट नाम की एक कणिकाएं होती है हमारे रक्त के अंदर जो कि चिपचिपा होती है और ये क्लॉटिंग करती हैं, इनमें गड़बड़ी। इन सब चीजों की वजह से हृदय आघात होता है। और हमने इस यूके पीडीएस स्टडी में सिर्फ ग्लूकोज पे ध्यान केंद्रित किया था और ग्लूकोज को ही कम करके हम देखना चाह रहे थे कि क्या प्रभाव मिलेगा। तो ये हुआ कि अगर इन सारे फैक्टर्स को अगर हम एक साथ अटैक करें, इन सबको एक साथ अगर हम इनका नियमन करें, तो हमें क्या नतीजे निकलते हैं। तो इसको देखने के लिए डेनमार्क में एक स्टेनो डायबिटीज सेंटर, एक संस्था है, बहुत नामी संस्था है, उन्होंने एक ट्रायल डिजाइन किया, स्टेनो ट्रायल। और इसमें उन्होंने क्या किया कि ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड, एंटीप्लेटलेट, ये सारी चीजों का समावेश किया चिकित्सा के अंदर, जो इंटरवेंशनल आर्म था, जिनके ऊपर हम इंटरवेंशन कर रहे थे। और उन्होंने ये देखा कि परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हु रीच्ड इंटेंसिव ट्रीटमेंट गोल्स एट ए मीन ऑफ 7.8 years, करीब करीब
8 साल के बाद ये देखा गया कि जिनमें इंटेंसिव हम काम कर रहे थे और ये कंट्रोल आर्म था, ये इंटेंसिव आर्म है। तो अगर A1C देखें तो इंटेंसिव आर्म में हम ज्यादा लोगों में A1C का गोल टारगेट अचीव कर पाए। कोलेस्ट्रॉल का गोल हम ज्यादा लोगों में लगभग 70% में हम अचीव कर पाए। ट्राइग्लिसराइड ये भी लिपिड का घटक है। ब्लड प्रेशर ज्यादा लोगों में हम नॉर्मलाइज कर पाए, और चाहे सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हो चाहे डायस्टोलिक नीचे वाला हो, इन सब चीजों में इंटेंसिव आर्म में एक अच्छा हमको कंट्रोल मिला। नतीजा क्या निकला कि ये कन्वेंशनल थेरेपी ऊपर वाला ग्राफ, और ये जिनको हमने सारी चीजों के ऊपर अटैक किया, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, प्लेटलेट, तो ये देखा गया कि जो इंटेंसिव आर्म था उसमें लोअर जो हार्ट से संबंधित अटैक होने वाली जो दर थी उसमें लगभग 53% की गिरावट आ गई। वो हम 13% देख रहे थे यूकेपीडीएस में, ये बढ़ के 53% तक पहुंच गया। तो ये समझ में आया कि हमें मधुमेहियों में सिर्फ शुगर ही नहीं देखना है, हमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, स्टैटिन, ये सब चीजों का समावेश करना और इन सब चीजों पे निगाह रखनी है, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आने वाले समय तक मिलेंगे। तो एक ये डिस्कवर स्टडी प्रोग्राम है, यहां भी हुआ था टू असेस ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड फैक्टर्स एसोसिएटेड विद पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल एट इनिशिएशन ऑफ सेकंड। यानी आप जैसे हमारे पास कई मधुमेह के रोगी आते हैं कि एक दवा खा रहे हैं, शुगर नहीं कंट्रोल है, तो हमने समय से दूसरी दवा जोड़ी कि नहीं, तीसरी दवा जोड़ी कि नहीं, या उस दवा को जोड़ने में हमने विलंब किया, तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम 6 महीने के बाद देख रहे हैं हमको हमारा टारगेट शुगर लेवल नहीं मिल रहा है, तो हम कितनी जल्दी दूसरा दवा उसके अंदर जोड़ते हैं या तीसरा दवा जोड़ते हैं और कितना विलंब करते हैं। तो विलंब करने से क्या नुकसान होता है, और अगर हम सही समय पे प्रारंभ से ही जोड़ दें और शुगर को एकदम नियम उसके नॉर्मल रेंज के अंदर ले आए, तो क्या फायदा मिलता है। तो इस स्टडी, ये स्टडी लगभग 16,000 टाइप 2 मधुमेहियों में की गई 38 देशों के अंदर। डेटा क्या निकल के आया कि अगर हम अर्ली इंटेंसिफाई करते हैं, प्रारंभ से ही अगर हम दूसरी दवा जोड़ देते हैं और शुगर को नीचे ले आते हैं, तो अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली इंटेंसिफिकेशन अगर हम ये करते हैं ग्लूकोज को लोअर करने में, तो उससे हमको हमारे क्लिनिकल आउटकम्स बढ़ जाते हैं। देखिए 6 महीने पे, 12 महीने पे, 24 महीने पे, 36 महीने पे, ये प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स विद HbA। तो हम जितना जल्दी दूसरा दवा जोड़ देते हैं उतनी जल्दी हमको A1C अचीव करने में, शुगर को नीचे करने में सहायता मिलती है। और जितना विलंब करते जाते हैं, तो विलंब करके अगर हम दूसरा या तीसरा दवा जोड़ते हैं, तो हम बहुत जल्दी उस ग्लूकोज लेवल को अचीव नहीं कर पाते और उनमें फिर हमें इंसुलिन देना पड़ता है। लेकिन अगर हम टाइम से दूसरी दवा जोड़ दें, तो बिना इंसुलिन के भी हम बहुत लंबे समय तक सिर्फ दवाओं पर शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो टाइम से काम करना बहुत जरूरी होता है। ये उसी का कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। एक स्टडी मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, डायरेक्ट स्टडी, ये ब्रिटेन में की गई है। अक्सर हमने बताया ना कि डॉक्टरों पे ये थोप दिया जाता है कि डॉक्टर तो सिर्फ दवाई लिखना चाहते हैं, दवाई बताना चाहते हैं, उनको जीवन शैली से मतलब नहीं होता, वो खान पान पर ध्यान नहीं देते, उनको अपनी दवा से मतलब। लेकिन ये डायरेक्ट स्टडी हुई है, ब्रिटेन में हुई है, यूनाइटेड किंगडम में, और ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हुई है और मुख्यतः डाइट के ऊपर हुई है। इस ट्रायल में उन्होंने देखा कि अगर 12 महीने का ये स्टडी है, 12 महीने देखा कि अगर आप किसी का भोजन की कैलोरी बहुत कम कर दें, मान लीजिए वो 2500 कैलोरी का भोजन करता है, उसको घटा के आप 400 से 800 के बीच में ले आए, तो एक अच्छा वजन में गिरावट आती है, ओबेसिटी, मोटापा कम होता है। और अगर आप 15% से ऊपर वजन कम करा ले जाएं, तो 86% ऐसे मधुमेही बिना दवा के ही नॉर्मलाइज हो जाते हैं, उनमें फिर दवा की भी आवश्यकता नहीं रहती। इसे हम कहते हैं रेमिशन। रिवर्सल नहीं है, रेमिशन। वो रेमिशन में चला गया सिर्फ वजन कम करने से, और फिर इसकी लीगेसी वो आने वाले समय में लंबे समय तक उसका आनंद लेगा, उसका डिविडेंड भोगेगा। तो सिर्फ खान पान में ही परिवर्तन कर लें, आप अपना भोजन कम कर दें, अपने वजन को कम कर लें और हर स्तर पर कम कर लें। 5 किलो तक कम किया तो 6.7% लोग जो है वो दवा से फ्री हो गए। 5 से 10% अगर वजन कम हुआ तो लगभग 34% लोग दवा से मुक्त हो गए। 10 से 15 केजी आपने कम किया तो लगभग 57% लोग दवा से मुक्त हो गए, और 15 केजी से ऊपर आपने कम कर लिया तो 86% लोग दवा से मुक्त हो गए। ये वजन कम करने की मात्रा है। हम खाते बहुत ज्यादा है
और उसके बाद 110 किलो की महिला आके बैठ जाती है क्लिनिक पे और उसकी पहली शिकायत होती है, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगता। उसका वजन होना चाहिए 56 किलो, 55 किलो, 60 किलो, है वो 105 किलो की, और पहली शिकायत है मुझे भूख नहीं लगता है। ये बहुत आम चीज है। तो अगर 10% से 10 केजी से ऊपर वेट लॉस हो जाए तो 73% लोग रेमिशन में चले जाते हैं, उन्हें औषधि की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये डायरेक्ट स्टडी का कंक्लूजन क्या निकला कि रेमिशन शुड बी ए प्राइमरी एम ऑफ डायबिटीज। हम जो मधुमेह का केयर देते हैं तो हमारा प्राइमरी एम होना चाहिए कि हम वजन कम करा करके, एक्सरसाइज करा करके हम उसको, पेशेंट को यदि संभव हो 10 किलो, 12 किलो, 7 किलो कम करा दें तो अधिकांश लोग बिना दवा के ही काम चला ले जाएंगे। मतलब शुगर कम करने वाली दवा के, ब्लड प्रेशर, लिपिड, इनकी दवा तो चलेगी, लेकिन शुगर की दवा हो सकता है हट जाए। तो ये हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए। अब मैं आपको स्टेनो स्टडी की बात कर रहा था ना कि जहां पर हार्ट के, जहां पे देखा गया कि अगर सिर्फ शुगर कम करें तो हार्ट से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस में उतनी अच्छी कमी नहीं आती, मात्र 13% की कमी आई यूकेपीडीएस में। तो इस स्टडी में उन्होंने ब्लड प्रेशर, लिपिड्स, स्टेटिन नाम की दवा, एस इनहिबिटर्स और एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, ये सारी चीजें डाली और ये देखा कि एक तो शुरुआत में ही कमी आ गई 8 साल पे, और उनको फिर 21 साल तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखा और 21 साल के बाद नतीजा ये निकला कि जिनको इंटेंसिव ट्रीटमेंट दिया गया था उनकी आयु उनके मुकाबले जिनको इंटेंसिव ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, जिनमें ये चारों चीजें नहीं डाली गई थी, इनकी आयु लगभग 8 साल बढ़ गई उस ग्रुप के मुकाबले जिसमें हम सिर्फ शुगर मेंटेन कर रहे थे। इस ग्रुप में जहां ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल सब चीज देख रहे थे, लगभग 8 साल की आयु इनकी औसतन अधिक हो गई। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये एविडेंस बेस्ड है, इसमें कहीं कोई कपोल कल्पित कोई बात नहीं की जा रही। अब हम लास्ट में एक चीज पे आ जाते हैं, क्यूमुलेटिव एलडीएल, मतलब कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा भी जुड़े हुए हैं दुबई से, वो अभी इस पे और आपसे डिटेल में बात करेंगे। हम प्रश्न बाद में लेंगे पाठक जी, पहले हम अपनी बात करते हैं। आपका वीडियो बीच में डिस्टर्ब हो रहा है सर। मेरा वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है? बीच अभी ठीक हो गया, बीच में थोड़ा हो जा रहा है। चलिए कोई बात। आवाज तो आ रही है ना? हाँ सर, स्लाइड्स दिख रही हैं आपको? बिल्कुल। बस तो चेहरे को भूल जाइए, आवाज और स्लाइड देखिए। ठीक है सर। कोलेस्ट्रॉल में हम अक्सर वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल करा कर रिपोर्ट लेके चले जाते हैं कि साहब आपने कहा था कोलेस्ट्रॉल जांच कराने को, जबकि पर्चे पे लिखा लिपिड प्रोफाइल। कोलेस्ट्रॉल के या लिपिड्स के रक्त में जो वसा है उसके विभिन्न घटक होते हैं, उसको टोटल को कहते हैं लिपिड प्रोफाइल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल एक घटक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल दूसरा घटक है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन तीसरा घटक है, वेरी लो डेंसिटी वीएलडीएल चौथा घटक है। ऐसे करके अलग अलग ट्राइग्लिसराइड एक अलग घटक है। कई घटक होते हैं और हर घटक की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है और रेलिवेंस होती है। तो हम पूरा लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। मोटा मोटा आप ये जाने कि टोटल कोलेस्ट्रॉल नहीं ज्यादा होना चाहिए, एलडीएल भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक मानक से ऊपर है तो वो रक्त धमनियों के अंदर उसको हम कहते हैं प्लाक फॉर्मेशन, यानी रक्त धमनी के अंदर की जो दीवार होती है, एंडोथीलियम होता है, उसके अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का या फैट का डिपोजिशन, चर्बी का डिपोजिशन, जमावड़ा शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वहां पर एक उभार बनने लगता है जिसको हम प्लाक कहते हैं। और फिर ये प्लाक जिसके अंदर की वसा संचित है, किसी दिन अचानक वो फट जाती है और वहां पर आकर प्लेटलेट बड़ी तेजी से चिपकने लगते हैं और फिर उस चिपकने की वजह से यहाँ पे एक रक्त का थक्का जमता है और वो रक्त का थक्का अचानक उस खून की नली को ब्लॉक कर देता है। तो जो नली ब्लॉक हुई है उस नली से जो हृदय का हिस्सा रक्त सप्लाई, ब्लड सप्लाई ले रहा है, वो हिस्सा मृत हो जाता है क्योंकि उसको रक्त नहीं मिल रहा होता। इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो इसलिए ये देखा गया है कि हमको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन सब को एक मानक के नीचे घटा के रखना चाहिए। और हर मधुमेही को, हर हाइपरटेंसिव वाले मरीज को, हर ऐसे मरीज को जिसका कि कोलेस्ट्रॉल के विभिन्न घटक एक मानक से ऊपर रहते हैं, जिनके परिवार में हार्ट अटैक का, पक्षाघात का इतिहास है, उन सब को स्टेटिन नामक दवा लेनी चाहिए और मधुमेहियों को तो लेनी ही लेनी है, आजीवन, जीवन पर्यंत लेना है।
होता क्या है कि जब एक दो रिपोर्ट व्यक्ति अपने लिपिड प्रोफाइल की नॉर्मल देख लेता है तो वो बिना बताए बिना पूछे उस दवा को बंद कर देता है, जिसको हम स्टैटिन बोलते हैं। अधिकांश लोग स्टैटिन ही खा रहे होते हैं किसी न किसी नाम से, एटरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, कोई ना कोई स्टैटिन दवा खा रहे होते हैं। उस दवा को बिना पूछे बंद कर देते हैं कि एक दवा कम करो, फालतू दवा है, अब से मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल चल रहा है। नहीं, जितने लंबे समय तक आप उस दवा का सेवन करते हैं और अपने कोलेस्ट्रॉल के लिपिड्स के घटक को रेंज के अंदर रखते हैं, उतना ही लंबे समय पर आपको उतना ही ज्यादा फायदा मिलता है। आपको हार्ट अटैक, पक्षाघात होने की संभावना उतनी ही ज्यादा कम होती जाती है। इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बर्डन, कि हमने कितना क्यूमुलेट किया है। मान लीजिए 10 साल तक हम बहुत हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेकर के जीते रहे, दवा नहीं की, और 10 साल के बाद हमने दवा शुरू की और हम बहुत अच्छे नीचे ले आए। लेकिन 10 साल का जो हमने संचय किया, जो एसआईपी डाला है उसके अंदर, वो हमारे सारे प्रयासों को निरर्थक कर देगा या उसको ब्लंट कर देगा, कम कर देगा। दूसरा व्यक्ति है जो प्रारंभ से मधुमेह की डायग्नोसिस होते ही अपने स्टेटिन दवा को नियमित लेता रहता है, अपने कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को मानक के अंदर रखता है, तो उसका जो कोलेस्ट्रॉल बर्डन है वो बहुत कम है। तो आगे चल के उसको हार्ट अटैक या पक्षाघात होने की संभावना बहुत कम रहेगी बनस्पत उसके कि जिसने 10 साल तक कुछ नहीं किया और अब कहता है हम पूरी दवा खाएंगे, उसमें फिर भी दर हमेशा ज्यादा रहेगी। और ये एक स्लाइड, आप इस स्लाइड पे बहुत ज्यादा मगजमारी मत कीजिएगा, मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि इस स्लाइड में एक तो जीन्स के माध्यम से जो हमें ये कोलेस्ट्रॉल में गड़बड़ी की गुणवत्ता मिल जाती है, जिसको कि हम मेंडेलियन स्टडी, ये मेंडेलियन स्टडी की गई 52 साल तक लोगों के ऊपर, जिनको आनुवांशिक रूप से कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होने का मिला हुआ था। दूसरा, हमने जो है वो कुछ प्रोस्पेक्टिव स्टडी दवा देकर के की कि आने वाले समय में 12 साल तक अगर हम किसी को दवा दे रहे हैं तो क्या प्रभाव मिलेगा। और तीसरा, घंटी बजा दो मैडम, वो ले लो मोबाइल। तीसरा जो ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, 2 ग्रुप में डाला, एक को बिना स्टेटिन के, एक को हाई स्टेटिन पे, ऐसे करके हमने ट्रायल किया और लंबे समय तक हमने उनको ऑब्जर्व किया, 52 साल तक, 12 साल तक, 5 साल तक। और देखिए ये स्टडी आप गिन नहीं पाएंगे कितनी स्टडीज की गई हैं हर ग्रुप में। ये सब स्टडीज हैं जहां जहां डॉट बने हुए हैं। 50 स्टडी हो चुकी है और हर बार हर स्टडी ने ये इस चीज को एनफोर्स किया कि स्टेटिन नामक दवा एक वरदान है, एक भून है। ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं कम करता, ये सिर्फ एलडीएल नहीं कम करता, ये शरीर के अंदर जो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है उसको भी कम करता है। और इसके कई और अच्छे प्रभाव, मतलब लाभकारी प्रभाव होते हैं। ये हृदय पक्षाघात, हृदयघात, पैरों के अंदर नसों के ब्लॉक होने की संभावना, इन सब में बहुत भारी कमी लाता है। और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे ग्राफ हमारा ऊपर चलता चला जाता है। मतलब ये है प्रोपोर्शनल रिडक्शन इन रिस्क। तो जो अनुपात है रिस्क रिडक्शन का, वो जैसे जैसे समय बीतता जाता है इस दवा के ऊपर, वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है, यानी हमारा लाभ बढ़ता ही चला जाता है। ये एक एसआईपी की तरह है कि आपने 30 साल की अवस्था से एसआईपी में थोड़ा थोड़ा पैसा डालना शुरू किया और 60 साल तक पहुंचे तो आपके पास अच्छी खासी है धनराशि एकत्रित हो गई है, लीगेसी हो गई है आपकी। तो आपने प्रारंभ से ही कोलेस्ट्रॉल के नियमन में अपना ध्यान लगाया, थोड़ी थोड़ी दवा आप खाते रहे लगातार, तो 30 साल 35 साल के बाद आपके हृदयघात और पक्षाघात होने की संभावना उतनी कमतर होती चली गई। ये है लीगेसी। तो द लोअर द लॉन्गर द बेटर, यानी स्टेटिन को लेते हुए आप अपने एलडीएल को जितना नीचे रखते हैं, जितने लंबे समय तक रखते हैं, उतना ही वो बेहतर होता जाता है, उतना ही लाभ बढ़ता चला जाता है। आप लीगेसी ऑफ योर कंट्रोलिंग एलडीएल उसको भोगते हैं आने वाले समय में। तत्काल नहीं पता था, आपको लगता है एक फालतू दवा खिलाए जा रहे हैं, फालतू दवा खिलाए जा रहे हैं, हर 6 महीने पे कहते हैं अपना लिपिड प्रोफाइल करा लो, लेकिन इसका जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो 30 साल बाद मिलेगा। आपने 30 साल, 35 साल, 40 साल की आयु में शुरू किया तो 70 साल, 60 साल, 65 साल, 75 साल में जाकर के आप इसका सुख भोगेंगे, इसकी लीगेसी भोगेंगे। तो लागा गठरी में चोर जाग मुसाफिर, जैसे ही पता चला कि शुगर हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, या परिवार में आपके मधुमेह का इतिहास है, हाई ब्लड प्रेशर का इतिहास है, समय से पहले हार्ट अटैक होने का इतिहास है,
तो आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर लें। उसकी मैंने स्टडीज आपको दिखाई। तो बिना दवा के जो है आप लंबे समय तक इन चीजों से बचे रहेंगे। आपको एक बार हो गया तो समय रहते अगर आप अपना शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ नियमन में रखेंगे तो 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद आपके दिल, गुर्दे, दिमाग, हृदय सब बचे रहेंगे और आप एक बुढ़ापे में, बुढ़ापा तो नहीं कहूंगा, अधिक अवस्था में आयु के आप एक अच्छा सेहत का आनंद लेते रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, आपको डायलिसिस में नहीं चढ़ना पड़ेगा, आपको लेजर नहीं कराना पड़ेगा। तो जैसे ही पता चला कि गठरी में चोर लग गया है तो जाग जाइए। एंड बाय एक्टिंग अर्ली विथ फुल इम्पैक्ट बिफोर द बीटा सेल्स आर टोटली रॉब्ड, फेलिंग टू रिकवर, आपका बीटा सेल पेनक्रियास का पूरी तरह से चुक जाए और आप दवा ही ना करें, आप समय से दवा की मात्रा ना बढ़ाएं, आप 2 दवा जोड़ने में ही बहुत विलंब कर दें, आप इंसुलिन पे जाने में बहुत विलंब कर दें, तो फिर उसका लाभ नहीं मिलता है, बहुत कम लाभ मिलता है। और मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है यजुर्वेद का कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा ब्रह्मांड होता है पिंड भी वैसा ही होता है और जैसा पिंड होता है वैसा ही ब्रह्मांड होता है। ये अंतरिक्ष के माध्यम में के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। लेकिन शरीर के परिप्रेक्ष्य में लें तो जैसा शरीर होगा, शरीर की रचना जैसी होगी, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति किस ब्रह्मांड में रह रहा है। उसका खान पान, उसका वजन, उसके शरीर की बनावट कैसी है, किन बीमारियों से घिरा हुआ है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की दिनचर्या, उसके आसपास का वातावरण कैसा होगा। और यदि किसी व्यक्ति के आसपास के वातावरण को आप अध्ययन कर लें तो आप अंदाज लगा लेंगे कि किसी व्यक्ति की सेहत कैसी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि गिरजा का फोन है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। ये कृष्ण भगवान ने गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि दुखों का नाश करने वाला योग, योग मतलब आसन नहीं होता है। हम लोगों ने योगा डे के हिसाब से समझ लिया है योग का मतलब आसन नहीं, योग का मतलब जोड़। तो उस योग में भी अष्टांग योग है, वो 8 चीजों का जोड़ है जिसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा अभी। तो यहाँ पर भी कृष्ण कह रहे हैं भगवान हमारे कि किन किन चीजों का योग करने से आप दुखों से परे रह सकते हैं। उनका कहना है कि यथा योग्य आहार और यथा योग विहार, यानी डाइट एंड एक्सरसाइज, यथा योग आहार, यथा योग विहार करने वाला, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाला, यानी आपके कर्म, आपका लाइफ स्टाइल, जीने का तरीका, आपकी सोच, तथा यथा योग्य सोने और जागने वाला, इसको दुखों के नाश को सिद्ध करता है। एक लाइन में सब कुछ बता गए हैं वो एक श्लोक में, जिसको कि आजकल के हम मॉडर्न साइंस में कहते हैं लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन। मतलब न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, स्लीप हाइजीन पे ध्यान दीजिए और हेल्दी हैबिट्स अपनाइए। ये यही बातें इस श्लोक में लिखी गई। तो आप एक अच्छे मेटाबॉलिक हेल्थ की लीगेसी लेकर के पूरा जीवन जिएंगे। आने वाले समय में एक जब आपकी आयु बढ़ेगी तो आप बहुत से विकारों से मुक्त रहेंगे, आपके खर्चे कम रहेंगे चिकित्सा के ऊपर, अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो एक कहावत है कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये अंग्रेजी का प्रोवर्ब है कि समय से अगर 1 टाँका लगाते हैं तो 9 टाँके लगाने से आप बच जाते हैं। और का वर्षा जब किसी सुखाने, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो जब प्यास लगी हो तभी हम पानी दें, नहीं तो बाद में अमृत भी पिलाएंगे तो कोई मतलब नहीं करता। तो समय रहते अपने शरीर पर ध्यान दें और उस लीगेसी को भोगें। तो सही वक्त, सही अवसर और सही पकड़, यही संदेश है आज का। इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन बंद करता हूं और अब ये मैं ओपन कर रहा हूं क्वेश्चन आंसर्स के लिए और लोगों की अपनी टिप्पणियों के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर रतन श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं लखनऊ से, डॉक्टर कृति है ही है, डॉक्टर उमेश चंद्रा सर्जन जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पीके श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं लखनऊ से, कई डॉक्टर आज जुड़ गए हैं। तो अब आपको बहुत सारे इनपुट मिलेंगे। डॉक्टर अभिजीत आप म्यूट हैं, अब आप यू स्टार्ट योर मॉडरेशन एंड लेट्स इनवाइट द क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। थैंक यू। अच्छा, हमारे अध्यक्ष जी भी अमेरिका से जुड़ गए, वेदानंद दुबे जी। अरे वाह। तो मित्रों, आज हमारे साथ बहुत सारे ज्ञानी डॉक्टर जुड़े हुए हैं
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दिमाग में जो भी कौतूहल हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको प्लीज आप लोग इस पे क्वेश्चन के माध्यम से पूछें। और एक सवाल मेरे मन में भी जागृत हुआ, आपने इतनी सारी स्टडीज कोट की डॉक्टर साहब, जी सब में आपने ये बताया कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन शैली, ये चीजों का इम्पोर्टेंस क्या है। डाइट का इम्पोर्टेंस बताया, वेट का इम्पोर्टेंस बताया, ओबेसिटी का इम्पोर्टेंस बताया, और इसमें यह भी बताया कि यूजुअली पेशेंट हर चीज के लिए एक दवा चाहता है, अपनी ओर से कोई मेहनत नहीं करना चाहता, जो कि काफी हद तक सत्य भी है। आजकल मार्केट में नई कुछ दवाएं आई हैं जिसको GLP-1 एनालॉग बोलते हैं। खास करके ये इंजेक्शन के रूप में इंडिया में तो अभी न्यू लॉन्च हुआ है वीगोवी इंजेक्शन का। लीराग्लूटाइड बहुत पहले से है। तो वेट लॉस के लिए या फिर डायबिटीज में इसकी कहाँ पे भूमिका है, और किन पेशेंट्स में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और इससे हमको क्या लाभ मिलेगा आगे चल के, इसका क्या लेगेसी होगा, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत ही समसामयिक आपका प्रश्न है। इस समय भारत में वेट रिडक्शन के लिए 2 मॉलिक्यूल्स उपलब्ध हो गई हैं। एक लिली कंपनी की माउंजारो दवा है तिर्जेपेटाइड, और नोवो कंपनी की एक दवा आती है सीमाग्लूटाइड वीगोवी। ये दोनों हम इसको कहते हैं GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग। माउंजारो जो है वो GLP GIP दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो हमारे आम नॉन मेडिकल लोग जुड़े हुए हैं शायद उनके समझ में उतना अच्छा नहीं आएगा। मोटा मोटा ये समझें कि ये एक प्रकार का हार्मोन है जो एक स्वस्थ मनुष्य के आंतों से सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, और ये हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के मेंटेनेंस में, उसको संचालित करने में अपनी, और हमारे क्षुधा को, हमारे भूख को भी नियंत्रित करने में अपनी भूमिका निभाता है। और ये प्रारंभिक अवस्था में इस मॉलिक्यूल का GLP-1 और GLP GIP मॉलिक्यूल का जो कॉम्बिनेशन, इसको पहले शुगर कंट्रोल करने के लिए ही उपयोग में लाया गया। लेकिन बाद में यह देखा गया कि जिन लोगों में इन दवाओं का उपयोग किया गया उनमें वजन में अच्छी गिरावट आई, उनका वेट कम होने लगा। क्यों? क्योंकि ये भूख को कम कर देता है, बहुत जल्दी संतुष्टि प्रदान कर देता है। आपने एक परोठी भी खाया तो उसके बाद इच्छा होगी कि अब आगे नहीं खाएं, मन ही नहीं करेगा। तो होता क्या है कि सबसे अधिक जो भोजन को नियंत्रित करने में जो सबसे बड़ी बाधा बनती है वो बनती है हिडोनिक ईटिंग। हिडोनिक मतलब प्लेजर, टेकिंग प्लेजर इन ईटिंग, खाने में आनंद लेना। खाने में आनंद लेना चाहिए, बेस्वाद खाना और बिना आनंद के खाना का तो मतलब भी नहीं है। लेकिन हमको एक लत लग जाए कि हमको हमको सिर्फ प्लेजर के लिए खाना है, मिल गया तो खा लिया, बहुत अच्छा लगता है तो खा लिया, ये नहीं देखा कि हमें जरूरत है कि नहीं, हमारा वजन कितना है, हमको कितनी कैलोरी की जरूरत है। तो आदमी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता। यदि आदमी नियंत्रित कर ले, जैसे डायरेक्ट स्टडी में मैंने आपको दिखाया कि जिन लोगों को एनरोल किया गया था उनको GLP और GIP नामक कोई दवा नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी उनमें सिर्फ कैलोरी को कट डाउन करके, भोजन की कैलोरी को, मात्रा को 450 से 800 कैलोरी के बीच में घटा करके वो लगभग 20 kg तक वजन गिराने में सफल हो गए। लेकिन वो अंडर सुपरविजन थे, अंडर गाइडेंस थे, उनके ऊपर एक निगाह रखी जा रही थी। आम पेशेंट्स पे आप निगाह नहीं रख सकते, आपने गाइडेंस दिया, बता दिया, वो घर चला गया। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने आदत पे, अपने इस खाने की ललक पे काबू रख पाए। तो उसके लिए जहां वजन बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, और आपने ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ट्राई करके देख लिया, मरीज ने भी कहा कि साहब हमसे जो बन पड़ता मैंने कर लिया, अब इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, अब आप कुछ करो, मेरा वजन नहीं कम हो रहा, वहां पर इन दवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये दवा अच्छा वजन कम करती है, और अगर व्यक्ति मधुमेही है तो शुगर को भी नियंत्रित करती हैं। इनका आगने वाले समय में हृदय आघात, पक्षाघात और गुर्दे के ऊपर भी बहुत अच्छे प्रभावकारी, लाभकारी प्रभाव देखने को मिले हैं। इन पे बहुत बड़े बड़े शोध हैं, और ये 2 दवा अब रिकमेंडेड है कि यदि व्यक्ति वजन कम करना चाहता है, मॉर्बिडली ओबीज है, 30-35
से ज्यादा उसका बीएमआई है और लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन करने के बाद भी टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो वहां इन दवाओं का उपयोग करें। दिक्कत क्या है, भारत में ज्यादातर दवाएं रोगी अपने जेब से खरीदता है, इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत वो कवर होती नहीं। और ये दवा जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी दवा है, इसकी कीमत औसतन प्रति माह 12 से 15,000 रुपए आती है, जो हर व्यक्ति, और इसको लगातार लेना होता है। ये नहीं कि 2 महीने लिया, वजन कम किया, आपने बंद कर दिया। स्टडीज हैं कि जब आप बंद करते हैं तो फिर से वजन भागना शुरू हो जाता है। तो प्रति माह 12 से 15 से 20,000 रुपया साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल आदमी लगाए, सबके बस का नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा एक लिमिटिंग फैक्टर है। अदरवाइज बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है। डॉक्टर वीरेंद्र, आप कुछ इस पे कमेंट करेंगे? हाँ, थैंक यू। तो वेरी नाइस लेक्चर, बहुत अच्छा लगा। स्पेशली हिंदी में सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे ये नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो Thank you. जस्ट कुछ पॉइंट हैं। एक पॉइंट तो ये है कि ये हम पिछले 1 साल से यूज कर रहे हैं मोंजेरो एंड ओज़ेम्पिक, एंड ऑलमोस्ट 100 पेशेंट्स से ऊपर हैं हमारे पास। एंड एवरेज रिडक्शन जो इनका वेट है 5 किलो से लेके 26-27 किलो तक घटा देते हैं। और इसमें बस 2 उनको रिस्क, जब भी पूछते हैं इसका रिस्क क्या है, तो हम ऑलवेज कहते हैं कि एक तो ब्लैक बॉक्स वार्निंग है कि ये थायराइड का कार्सिनोमा कर सकता है। ये लिटरेचर में है, हमने किसी पेशेंट में देखा नहीं है, लेकिन वी आर ऑलवेज कॉशियस। तो थायराइड स्कैन वगैरह करके अगर कोई भी नोड्यूल आता है तो एफएनएसी करते हैं। और दूसरा पैंक्रेटाइटिस, कि उनका हमेशा लाइपेज अमाइलेज एवरी 3 मंथ्स चेक करते हैं। द मोमेंट कोई सिम्टम्स आता है जीआई का, पेट का, वोमिटिंग का, दर्द का, तो इमीडिएटली चेक करते हैं पैंक्रेटाइटिस तो नहीं हो रहा है। इस 2 के अलावा बहुत सेफ ड्रग है, एवरेज बेनिफिट ह्यूज है। कुछ पेशेंट हैं, करीब 5%, जो जिनको आदत है कि हम खाना तो खाएंगे ही, तो ब्रेकफास्ट भी करेंगे, लंच भी करेंगे, और वो जो उनकी डाइट सप्रेस होती है उससे फाइट करके खाते हैं। उनमें इसका फेलियर हमने देखा है। अभी कल ही एक पेशेंट था, 3 महीने से दे रहे हैं, 2 किलो वजन कम हुआ, विच इज वेरी रेयर। तो उस सिचुएशन में बैरियाट्रिक सर्जरी इज ए आंसर। और हम लोग के यहाँ बैरियाट्रिक सर्जरी इज अ वेरी कॉमन थिंग, और उस बैरियाट्रिक सर्जरी में 40 से 60 kg वेट कम हो जाता है इजिली। वो भी केस काफी हैं, और दे आर आल्सो वेरी सक्सेसफुल इन रिवर्सिंग डायबिटीज, कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, रिवर्सिंग एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस पे स्टडी की है, वो भी रिवर्स होती है। मतलब जो प्लेक का साइज है इट गोज डाउन। जो पहले इतना लोग कहते थे अरे एथेरोस्क्लेरोसिस रिवर्स नहीं होती, दैट इज रॉन्ग, वो भी रिवर्स होती है। दूसरा पॉइंट हम कहना चाहेंगे कि जो हम सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान किया है मेडिकल प्रोफेशन की गाइडलाइन में और लोगों के उसमें, वो किया है कि आपने हमेशा देखा होगा कि एक कोई अगर देवता होता है तो राक्षस होते हैं, कोई अच्छी बात कहता है, कोई लीडर है तो उसकी अपोजिशन होगी हमेशा। तो लिटरेचर इतना भरा हुआ है इंटरनेट, जिसमें स्टैटिन का अपोज करने वालों की कमी नहीं है। डायबिटीज व्हाट्सएप ग्रुप पे तो अक्सर मैसेज आ जाता है। हाँ, और डायबिटीज की लेवल को उल्टा सीधा बताने वालों की कमी नहीं है। तो आपको इन गलत बातों से या रॉन्ग इंफॉर्मेशन से कैसे बचना है, ये भी अब तरीका आना चाहिए, क्योंकि 30 to 40% इंफॉर्मेशन इंटरनेट में और व्हाट्सएप में गलत है। उससे बचना है आपको, बस उन हमारे गलत साथ जुड़े, इंफॉर्मेशन से बायस जी हमारे नहीं साथ होना। जुड़ते रहें, बचे रहेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उससे के तीसरी जो हम हमेशा कहते हैं, इफ यू फॉलो 3-point program, you will not see a cath lab, you will not see an angiogram or angioplasty. Most of your life will be. And what is this 3-point program? The first point is your diet and lifestyle. What you eat is important. And now everybody knows what is healthy, what is unhealthy. इस पर तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, सबको पता है, इतना लोग पढ़ते हैं. So control your this point, diet, lifestyle and weight. Second program is regular exercise. Exercise को 3 point में हम बताते हैं, ABC. One exercise which you walk regularly, play games, sports, 30 minutes, very good.
Second part is stretching and yoga and asan and pranayam. ये second part है 15 minutes. 30-45 minutes play, 15-20 minutes yoga, and devote 15 minutes for meditation. Meditation is important because what is your mind? Mind is a software which runs on our brain. And the software is better better is the brain and function of our body. जितना अगर आप मेडिटेशन आप 15 मिनट्स करके देखिए कितना फर्क पड़ता है बॉडी पे. एंड व्हाट यू डू इन मेडिटेशन, पुट ए सिंगल थॉट वन टाइम. जैसे आपने कहा कि मेरी डायबिटीज कंट्रोल होनी है, नथिंग डूइंग, इसी को रिपीट चैंट करते हुए आप मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग करिए और 15 मिनट बैठिए. बॉडी पे ट्रिमेंडस इफेक्ट होता है. तो ये तीनों मिला के एक्सरसाइज होता है. एंड थर्ड पॉइंट इज ओनली टू कंट्रोल व्हाट वी नो. इसमें हम क्यों ये कह रहे हैं व्हाट वी नो, कि देयर इज ए स्टिल मेडिसिन इज नेवर ए कंप्लीट थिंग. 30 to 40% मिसिंग लिंक अभी भी है जो हमें नहीं पता. शायद 50 साल बाद हमें पता होगा तो हम कहेंगे देखो ये तब नहीं पता था. मेडिसिन इज ऑलवेज ए इवॉल्विंग साइंस. But what we know can still control 50 to 60% of our problems. So why not to stress on those 50 to 60% to control your diabetes, your cholesterol, your blood pressure, your sugar. This is just a little something you need to control. If you follow these 3 points, you will not see hospital, you will not go to cath lab. This is my guarantee. अच्छा, डॉक्टर अभिजीत, ये डॉक्टर पीके श्रीवास्तव साहब ने डाला है क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सर, 1 मिनट. नहीं, वो जुड़े हुए हैं, वो सीधे पूछ लेना, अनम्यूट करके सीधे पूछें, क्योंकि आपको क्वेश्चन अच्छा पढ़िए आप. तो डॉक्टर पीके श्रीवास्तव सर का क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैन बी विदाउट एनी अनयूजुअल इफेक्ट. हाउ लो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैन बी विदाउट any unusual effect. So I think the answer would be as low as you can go. For diabetics, we have various categories like high risk, very high risk, and extremely high risk groups. So for all the diabetics, it should be below 70. If the patient is in high risk category, it should be below 50. And if the patient is in extremely high risk category, you can take the LDL to as low as below 30. Yes. Am I right? Yeah. Correct. This is the guideline. Okay. So next question is by Dr. कीर्ति. उसके पहले मैं एक चीज और हाईलाइट करूंगा. डॉक्टर साहब, आपने और वीरेंद्र सर ने बहुत अच्छा बेरियाट्रिक सर्जरी और इस पे हाईलाइट किया है. एक चीज जो इम्पोर्टेंट है समझने की, कि हम लोगों ने ये जाना कि अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फेल हो जाए तो उसके बाद ये चीजें काम करती हैं, लेकिन आपने अगर किसी वेट लॉस ड्रग को स्टार्ट किया है, या इफ यू आर प्लानिंग टू अंडरगो अ बेरियाट्रिक सर्जरी, इट डज नॉट मीन दैट यू विल स्टॉप दैट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. आपको वो जीवन शैली का जो परिवर्तन है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी डाइट है, उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बेरियाट्रिक सर्जरी इज नोन टू फेल. Yes. And you also may not get the effect of the various drugs that you are taking for weight loss. So that is very important. Now coming to the next question by Dr. Kriti, which is, what is the role of HSCRP as a routine test in diabetics or hypertensive? Sir. HSCRP, देखिए ऐसा है कि डायबिटीज को, मधुमेह को हम कहते हैं इट इज ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या डिसऑर्डर. इन्फ्लेमेशन का हिंदी तो क्या शोथ होता है, अब शोथ का भी कुछ मतलब करना पड़ेगा. इन्फ्लेमेशन मतलब शरीर में एक फरेंजी, उसको क्या कहेंगे, एक्सफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है. तो कई ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन कितना है. उनमें से एक हाईली सेंसिटिव सीआरपी भी है. तो ये रोल ये है कि यदि आप किसी व्यक्ति का जो टारगेट एलडीएल है वो आपने अचीव कर लिया, तो उसके बाद आप एक बार उसका एचएससीआरपी भी करके देखिए. यदि वो 2 से ऊपर या 3 से ऊपर है तो देयर इज ए रेजिडुअल रिस्क. तो रिकमेंडेशन ये है कि ऐसे लोग जिनमें आपका टारगेट
लिपिड गोल अचीव हो चुका है, लेकिन HSCRP फिर भी ज्यादा है, तो उनमें आप एक बहुत पुरानी दवा है जो हम लोग गाउट में यूज करते थे, कॉल्चिसिन, 0.5 मिलीग्राम कॉल्चिसिन पर डे दीजिए। इस पे 3-4 स्टडीज हैं और अब ये रिकमेंडेशन में भी आ गया है। तो इट विल फर्दर रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक टू द ट्यून ऑफ 30% एडिशनल रिडक्शन। तो ये रोल है HSCRP का कि अगर आप टारगेट अचीव करने के बाद भी कराते हैं HSCRP वो ज्यादा है, तो फिर आप उसमें एक कॉल्चिसिन नाम की दवा भी ऐड करें। डॉक्टर वीरेंद्र इस पे और ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। मेरी जो नॉलेज है वो यही है। हाँ, नो, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 2 पॉइंट पे हम HSCRP हमेशा करते हैं। एक तो अगर पेशेंट रेजिस्ट करता है कि नहीं हम कोलेस्ट्रॉल अभी नहीं लेंगे और हमारा तो बॉर्डर लाइन है और बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्या है, एंड व्हेन वी शो देम HSCRP इज हाई, आई से लुक, इट इज अप टू फाइनल योर डिसीजन, लेकिन आपका HSCRP हाई है, ये भी कोलेस्ट्रॉल है, ये खतरनाक है, इसको कम करना ही है। देयर इज नथिंग, क्योंकि आपका इन्फ्लेमेशन चल ही रहा है आपके बॉडी में। और कॉल्चिसिन इज अ वेरी गुड ड्रग। इनफैक्ट बहुत स्टडी आई हैं हार्ट अटैक की और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, उसमें एज एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई बहुत कुछ कम ड्रग हैं जो अप्रूव्ड हैं, कॉल्चिसिन इज वन ऑफ देम, एंड इट हैज अ बेनिफिशियल इफेक्ट, no doubt. Thank you, sir. Now, next question is from Professor Ratan, sir. He has asked that the HDL usually observed in the blood checkup of my wife is in the range from 64 to 75 milligrams per deciliter. I need your comment on this. So I will request both of you to comment, and I will also request Professor Ratan to kindly show himself because it's been a long time. No, he's visible. He is visible. Yeah. अच्छा, तो सर आप क्वेश्चन खुद ही पूछ लीजिए प्लीज। थैंक यू, अच्छा लगा। वेलकम रतन, नाइस टू सी यू। नाइस टू सी यू। वीरेंद्र को देखा, डॉक्टर आलोक को देखा, अभिषेक को देखा, और मैंने मैसेज डाल दिया है कुछ लोगों को लोग ज्वाइन करें। मैंने प्रदीप को बोला, वो भी फिजिशियन है। हाँ, तो उसने भी ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा कि क्योंकि आलोक, एक बात तो ये है, बहुत अच्छा आप बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मतलब मेरी वाइफ भी सुबह से पीछे पड़ी थी, 9 बजे शुरू हो रहा है, हमने जल्दी से जल्दी शुरू किया, एंड वो भी हमारे साथ ही बैठी हुई है। हम लोग मतलब एडमायर करते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। और रियली मतलब हमने देखा, हमने कई टॉक सुनी है, बड़े अच्छे से अध्ययन किया है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल, कि जो मेडिटेशन की बात है, हमेशा लोग कहते रहे मेडिटेशन, मैं उसको सुन के इधर से उधर निकालता रहा। सूरत में भी किसी ने कहा बहुत अच्छा होता है। फिर फाइनली एक लेडी थी 95 ईयर एज की, हमें मिली PHU में। उसने बताया मैं योगा और मेडिटेशन करती हूँ, और हमने देखा 90+ के लोग जैसे कुर्सी में बैठते हैं, मेरे एक आध प्रोफेसर आधे घंटे में कहते हैं अब मुझे जरा रेस्ट करना है, लेकिन वो लेडी 2-3 घंटे तक बैठी रही। तो कभी मैं सोचता था कि चलो 60 साल तक हम फिट रहेंगे, अपना टारगेट बढ़ाता रहा कि हम अगर 50 साल तक कार चला सके तो बड़ा अच्छा है। फिर 60, लकली अब हम अभी 1 जुलाई को 70 साल के हो गए, हमारा लाइसेंस फिर 5 साल का बढ़ गया। लोगों ने डराया था लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। तो फिटनेस, हमें लगता है योगा और मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम मेडिटेशन पर्सनली समझना चाहते हैं, इस पर एक अच्छा लेक्चर हो, हम अटेंड करेंगे जरूर। और ऐसे बहुत से लोग, क्योंकि सही क्या है मेडिटेशन, कैसे करें, आपने कह तो दिया, और या तो हम फिर टीवी में देखें, यूट्यूब में देखें, पर आपका लेक्चर हमें ज्यादा आलोक ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा, बिकॉज यू टॉक। नहीं रतन, आपकी बात सही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लेक्चर यूट्यूब कोई कितना भी बढ़िया दे देना, अच्छा, जब तक आप व्यक्तिगत सानिध्य में उस व्यक्ति के नहीं आएंगे अच्छा, और उसके साथ नहीं सीखेंगे, वो बात कभी नहीं आ पाएगी। वो बात कभी नहीं आ पाएगी। ओके, देखें, मेडिटेशन को हम, सॉरी बीच में इंटरप्ट किया लो। नहीं, बिल्कुल बोलिए। मेडिटेशन को हम बल्कि अपनी क्लिनिक में 5 मिनट में 3 मिनट में पेशेंट को सिखाते हैं, एंड दीज आर, वी आर टॉकिंग ए नेशनल लोकल UAE पर्सन्स, मेल एंड फीमेल, और 2 मिनट में सीख के वो जाते हैं, और उनकी फीडबैक इतनी डिफरेंट, इतनी अच्छी होती है, द पर्सनालिटी चेंज, इरिटेबिलिटी चेंज, वो सब।
अभी 2 मिनट में आप सबको जितने लोग बैठे हैं बिल्कुल एक तो बैक वीरेंद्र, अभी सपोर्ट से आज नहीं, इसलिए हम लोग वी आर ओवर शूटिंग द टाइम। ओके नहीं, देन मुझे अच्छा लग रहा है कि सब लोग इतना नेक्स्ट एंजॉय कर मीटिंग आई रहे विल हैं। टीच देम, नो वरीज। अगला हम टॉपिक ही रख लेंगे इस पे। ठीक है, आई मेरा विल टीच देम। मेरा क्वेश्चन था, मेरी वाइफ का नहीं, अक्सर आपका क्वेश्चन जो है, आपकी श्रीमती जी का एसडीएल 55-60 के आसपास रह रहा है। हाँ नहीं, 64-65-75। दैट इज Very वाई good. शी इज द बेटर हाफ। He is blessed. नहीं, हमें कभी कभी चिंता होती है, इतनी ज्यादा है नहीं, तो मैं सोचा आप एसडीएल ज्यादा देखें। पे कोई चिंता करने की हाँ। जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, बिल्कुल ओके। बढ़िया है, It बहुत। can go दैट इज द beyond गुड 100. कोलेस्ट्रॉल। It is blessed. Higher it is, better it is. It is हाँ, blessed. शी इज ब्लेस्ड, शी इज योर बेटर अच्छा। हाफ, शी इज ब्लेस्ड। Yes. एंजॉय दैट। एवरेज हो जाना चाहिए दोनों का। थैंक यू। ऐसा लेकिन होता नहीं भाभी। लेकिन आलोक, मेरा 33 रहता है, तो वही 33 36 आप पता एवरेज नहीं। कर लो, एवरेज कर So लो। you are कोई बात unlucky. इनसे थोड़ा मिल जाए। एनीवे, चलिए। नहीं। अब कोई और सवाल है तो फिर, नहीं तो फिर बहुत अब अच्छा रहा। कोई और सवाल चैट बॉक्स में नहीं है। अगर किसी लंबा हम लोग पार्टिसिपेंट का कोई सवाल है तो हम ले सभा तक सकते बढ़ने हैं। जा रहे हैं। अच्छा, नहीं, आज का टॉक बहुत ही बड़ी, मतलब इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ। मेरा एक सवाल है भैया। किसका सवाल है? मेरा पाठक जी, यहाँ बोले पाठक आप। जी। हाँ, आपका सवाल आ जाए। सर, आपने एक अपने लेक्चर में बताया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आज तो काफी एजुकेटिव रहा आपका लेक्चर। आपने बोला सर कि ये रोसुवास्टेटिन जो कोलेस्ट्रॉल की दवा है वो लेते रहना चाहिए, बेनिफिशियरी है। अच्छा, क्या इसके साथ जो एस्प्रिन या इकोस्प्रिन जो खून पतला करने वाली दवा है, एज से कोई रिलेशन है क्या? कि मतलब 65 या 70 साल के बाद इसको लेना चाहिए, या कोई बॉडी में ऐसा कुछ हो तब लेना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सुझाव चाहिए सर। बताइए वीरेंद्र जी, क्या ब्लड थिनर की एज के साथ रिलेशन है या बीमारी के साथ रिलेशन है? और बीमारी के लिए अगर शुरू की गई तो कब तक लेनी चाहिए? जो इसकी लेटेस्ट गाइडलाइन है और पुरानी गाइडलाइन है, आज से करीब 10 साल पहले, 15 साल पहले तक गाइडलाइन थी आपको डायबिटीज है या आपको ये है, एज हो रही है तो आप ले लीजिए एस्प्रिन। देन दे कलेक्टेड लास्ट 20 इयर्स डेटा। उन्होंने कहा कि जो लोग एस्प्रिन ले रहे थे उनको कितना प्रोटेक्शन हुआ और जो लोग एस्प्रिन नहीं ले रहे थे उनको कितना प्रोटेक्शन हुआ और कितना कॉम्प्लिकेशन हुआ, कितनी जीआई ब्लीडिंग हुई, क्या हुआ। और उस डेटा के बाद बहुत सारी गाइडलाइन चेंज हुई। जो उसमें सबसे ज्यादा बड़ी गाइडलाइन चेंज हुई वो ये चेंज हुई कि आपको अब एस्प्रिन रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट कि आपको डायबिटीज है तो आप ले लें, इसकी जरूरत नहीं है। अब रिकमेंडेशन है कि अगर आपको कॉर्नरी एस्टेब्लिश्ड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, जैसे आपने सीटी एंजियो कराया है उसमें प्लैक्स हैं, आपने एंजियोग्राम कराया उसमें प्लैक्स हैं, या स्टंटिंग हो चुकी है, बाईपास हो चुकी है, तो आपको एस्प्रिन लेनी है, प्रोटेक्ट है। तो एविडेंस बेस्ड, अगर आपको एविडेंस है कि प्लैक है आपके कॉर्नरीज में या कैरोटिड्स में, कैरोटिड में भी प्लैक्स हैं और सिग्निफिकेंट प्लैक्स हैं, तो आप एस्प्रिन लीजिए, प्रोटेक्ट करेगी। नाउ कमिंग टू एज, हायर द एज हायर द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड हायर द प्रोटेक्शन, दोनों चीजें होती हैं। अब इसको असेस कैसे करते हैं? इसका मेन फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंटली हाई जाता है, उनको एस्प्रिन से रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि इट कॉज ब्लीडिंग, इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है 110, 120, 130 एंड यू आर इन दैट ग्रुप, देन यू कैन कंटिन्यू एस्प्रिन, इट प्रोटेक्ट्स। आपको पीसीआई हो चुका है, स्टंटिंग हो चुका है, बाईपास हो चुका है, आपको एस्प्रिन लाइफ लॉन्ग लेना है, नो एज बार, लेना ही है उसे, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। बिना एविडेंस, बिना एथेरोस्क्लेरोसिस के अब रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें आलोक और ऐड करेंगे कुछ? मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, जहां भी है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन ही है, या प्राइमरी प्रिवेंशन में भी जहां हाई रिस्क ग्रुप है, जहां एविडेंस है कि इनको आगे कुछ हो सकता है। हाँ जी, तो थैंक यू सर। इसी के साथ डॉक्टर कृति ने जो क्वेश्चन पूछा था एस्पिरिन पे चैट बॉक्स में, वो भी आंसर हो जाता है। लेकिन कृपया एस्पिरिन को स्टैटिन से कंफ्यूज ना करें आम जनता। एस्पिरिन को बिना एविडेंस के नहीं लेना, लेकिन स्टैटिन आपको लेना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल कराते रहें, डायबिटिक हैं तो नियमित रूप से स्टैटिन चलने दें। आज का टॉक बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा और बहुत सारे ज्ञानवर्धक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। एंड आई विल
इनवाइट विनय जी जुड़े हुए हैं। विनय जी विनय आ जी जुड़े गए हुए हैं। तो विनय सर कृपया करके क्लोजिंग रिमार्क्स दें। विनय जी आप हाँ तो अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। हाँ विनय जी हैं। हाँ जुड़े तो हैं वो। तो श्री वेदानंद जी से आप रिक्वेस्ट कर लें कि हाँ वो वेदानंद जी आप अमेरिका से जुड़े हैं, कृपया अनम्यूट करके सिएटल से आप कुछ एज ए अध्यक्ष आप सबका धन्यवाद ज्ञापन कर दें। नमस्कार सभी लोगों को। आज का कार्यक्रम आपका बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। और जो हमारे दो डॉक्टर्स लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं उससे हम लोगों का ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ा है। तो इन्हीं के साथ मैं थोड़ा देर से आया इसलिए देर से जुड़ पाया, लेकिन फिर भी आपके बीच जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आपको सभी का आभार प्रकट करता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम आप डायबिटिक सेल्फ केयर एसोसिएशन की तरफ से कर रहे हैं और करते रहेंगे। लोगों का ज्ञान इससे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर तो साहब, अगले माह के मेरे प्रथम तरफ से रविवार को भी फिर हम मिलेंगे नए विषय के साथ। Excuse me, everyone. Good morning, everyone. या Good morning, everyone. सर आपसे इंस्पायर होके आपसे सीख के सर हम लोगों ने एक प्लान किया है। एवरी थर्सडे डायबिटिक रेटिनोपैथी का स्क्रीनिंग हम लोग करेंगे एट आवर आप ओन अपने हॉस्पिटल। सेंटर पे। हाँ हाँ जी सर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर बहुत कुछ सीखना है अभी तो सर, बहुत कुछ सीखना है। चलिए थैंक यू सो मच। तो बाय, सी यू अगेन। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। रुको। डैडी कहाँ गए? डैडी डैडी वेदानंद अमेरिका में रुका जी। हाँ विनय बाबू। हाँ अमेरिका पहुंच गए का आप? हाँ भाई, अमेरिका 13 दिन हो गया। अरे वाह, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, नहीं तो पता भी नहीं चलता। चलिए एंजॉय करिए, 13 दिन हो गया। हाँ, एंजॉय है। अमेरिका तो एंजॉय के लिए बना ही हुआ है। चलिए व्हाट्सएप पे बात होगी, व्हाट्सएप पे। हाँ, व्हाट्सएप से बात हो जाएगी। टाइमिंग का है, अब यहाँ पे इस समय बज रहा है रात के 10। अच्छा आपका होगा सुबह साढ़े 10 करीब, 10:15। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए एडजस्ट करके बात करेंगे। ठीक ठीक है जी, ओके। ओके ओके। डॉक्टर वीरेंद्र हैं अभी जुड़े हुए?